मेयर ने दुर्गापुर में कार्निवल आयोजन करने पर उठाए सवाल। कहा आसनसोल को एक बार फिर किया गया वंचित किया गया, पहले भी वंचित किया गया, अभी भी आसनसोल को वंचित किया जा रहा है। ये आसनसोल के लिए दुखद स्थिति है। আচ্ছা, দুর্গাপুর পৌরসভা যে ভোট সামনে, কার্নিভালটা কি সেই এই কার্নিভালের কনসেপ্টটা কে দিয়েছে? আসানসোলে বার্নপুর দিয়েছে। তো আপনারা সবাই জানেন, তো প্রতিমা বেরোয়, বেসরকারি উদ্যোগ হয়, সমস্ত কমিটি তারা হিন্দু মুসলিম সবাই মিলে একসঙ্গে আখাড়া বের করে কার্নিভালের মতো। এখান থেকে আপনি কনসেপ্ট নিলেন এবং এখানে আচ্ছা, এই পুজো কমিটিগুলোর সঙ্গে কারো কথা হয়েছে যে তারাও মোটামুটি ভাবে ক্ষুব্ধ, আসানসোলকে চেয়েছিল যে আসানসোলেই দরকার? দেখুন, আমরা তো জনগণকে নিয়ে কাজ করি। পুজো কমিটির 60,000 টাকা যে পেয়েছে তারকে যদি বলে দেওয়া হয় যে আপনি মুখ খুললেই পরের বার থেকে 60,000 টাকা বন্ধ হয়ে যাবে, সে বলবে কি করে? কিন্তু পুজো কমিটি তো শেষ নয়, এবং তাদেরও পুজো কমিটি যারা আছে পদাধিকারী, তাদের বাড়ির লোককে গিয়ে জিজ্ঞেস, তার স্ত্রীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, তার মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, তার বাবা আছেন ওনাকে জিজ্ঞেস করুন যে এটা আসানসোল হলে ভালো হতো না। সবাই বলবে হ্যাঁ এটা ভালো। पूजा कमेटियों के साथ जो बैठक हुई थी उसमें तो ये बात उठी नहीं। वही तो ये तो यहाँ पर तो कोई মানে वही क्या বলে, আপনাদেরকে ভোট দিয়ে জেতালো, যেখান থেকে কেউ মন্ত্রী হয়েছেন, কেউ বিধায়ক হয়েছেন, কেউ মেয়র হয়েছেন, সেখানকার মানুষের প্রতি আপনার যে দায়বদ্ধতা সেটা পূরণ করুন। দুর্গাপুরে হাত নাড়লে কি হবে? আসানসোলের ট্যাক্সে পয়সা চলে যাবে ক্যালকাটা গিয়ে হাত নাড়বেন, আর আসানসোলের শিল্প সংস্কৃতি সবকিছু চলে যাবে দুর্গাপুর, সেখানে গিয়ে হাত নাড়বেন, আর আসানসোল বঞ্চিত থাকবে। এটা মেনে নেওয়া যায় না। এর প্রতিবাদ জানানোর জন্য আজ আমরা আপনাদের মাধ্যমে এই প্রেস মিট ডেকেছিলাম। বাস এটুকুই বলার ছিল। বরাবর ছাগলের তৃতীয় সন্তান বরাবর ভাবা হয়েছে, তো কোনো কিছু আসানসোলে হবে না। আসানসোলকে ধরে নেওয়া হয়েছে আসানসোল খালি টাকা রোজগারের জায়গা। এখান থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা যাবে, আর কলকাতায় লোকেরা থাকবেন, তারা ভালো করে থাকবে। কলকাতা ভালো থাকুক, এতে আমাদের কোনো আপত্তি না। আসানসোলে কি দেওয়া হবে? সিবিআই কোর্ট দেওয়া হবে। যত চোর বদমাস তারা গিয়ে আসানসোলে থাকবে। সিবিআই কোর্ট হবে আসানসোলে, যত এই এলাকা যত চোর বদমাস সব গিয়ে আসানসোলে থাকবে। আর শিল্প সংস্কৃতির বুদ্ধিজীবীদের কোনো ব্যাপার হলে সব আসানসোল থেকে বাইরে চলে যাবে, সেটা দুর্গাপুরে চলে যাবে, কলকাতা চলে যাবে। এটা আসানসোলকে ঘৃণা করা হচ্ছে বলে এগুলো করা হচ্ছে। আপনারা জানেন যে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের এবছর থেকে বিভিন্ন জেলায় দুর্গাপূজার পর পুজো কার্নিভালের একটা আয়োজন করা হচ্ছে, এবং এই যে কনসেপ্ট, এটা প্রথম পশ্চিমবঙ্গ যদি কেউ এনেছিল সেটা আমাদের আসানসোলে বার্নপুরে আমরা জানি প্রায় 30-40 বছর আগে থেকে এই প্রথা ছিল যে বিসর্জনের দিন সমস্ত প্রতিমা একসঙ্গে বেরোতো, এবং একটা কার্নিভালের একটা লুক দিয়ে সেটাকে আরও পরিমার্জিত করে একটা অন্যভাবে করা হচ্ছে। কিন্তু মূল কনসেপ্টটা আমাদের এই বার্নপুর থেকেই এর উৎপত্তি। আসানসোলের জন্য এটা গর্বের বিষয়। এবং যে কোনো জেলায় আপনারা দেখবেন যে সেই জেলার যে মূল শহর, যে কোনো বড় অনুষ্ঠান সেখানেই হয়। কিন্তু এই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আমরা দেখলাম যে এই দুর্গাপুজোর যে কার্নিভাল, সেটা কিন্তু যেহেতু দুর্গাপুরে কর্পোরেশন ভোট আছে, আসানসোল শহরে না করে দুর্গাপুরে করে দেওয়া হলো। আসানসোল লোকসভায় 7টা বিধানসভা, আর দুর্গাপুরে 2টো বিধানসভা। তো এই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় যেদিন পশ্চিম বর্ধমানের নাম দেওয়া হয়েছিল, সেদিন আসানসোলের মানুষ দাবি করেছিল যে এই জেলাটার নাম আসানসোল জেলা আমরা চেয়েছিলাম। সেদিন বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে না এটা পশ্চিম বর্ধমান জেলা হোক। আলটিমেটলি সবাই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখছি একের পর এক আসানসোলকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। অতীতে আমরা দেখতাম যে কলকাতাকে প্রাধান্য দেওয়া হতো, এখান থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা রেভিনিউ যেত, সেটা থেকে কলকাতাকে সাজানো হতো। এবছরও দুর্গাপূজায় দেখলাম যে কলকাতাকে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। আমাদের আসানসোলের টাকায় কলকাতাকে সাজানো হয়েছে, কিন্তু আসানসোলে দুর্গাপূজার সময় না লাইটের ব্যবস্থা, না রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা, কোনো কিছুই করা হয়নি। এবং শুধু তাই না, এতদিন কলকাতাকে সামনে রেখে আসানসোলকে বঞ্চিত করা হতো। আমি দুর্গাপুরকে ছোট করছি না, কিন্তু শুধুমাত্র যেহেতু দুর্গাপুরে কর্পোরেশন ভোট আছে, দুর্গাপুরকে সামনে রেখে আসানসোলকে আবার বঞ্চিত করা হলো। এই যে কার্নিভালটা করে দেওয়া হলো দুর্গাপুরে, আর আসানসোলের সব নেতারা গিয়ে ওখানে হাততালি দিচ্ছেন। লজ্জাও লাগে না? আসানসোলকে বঞ্চিত করছেন। নিজের চেয়ার বাঁচাবার জন্য আসানসোলকে বারবার বঞ্চিত করা হচ্ছে, এবং তারা গিয়ে দুর্গাপুরে হাততালি দিচ্ছেন। এবং এই যে প্রথা স্টার্ট হলো, এবার তো সামনে বছর প্রত্যেক বছর দুর্গাপুরই হবে। তাহলে আসানসোলের মানুষ যতদিন এই সরকার আছে ততদিন আর দুর্গাপূজার কার্নিভাল আর দেখতে পাবে না। অথচ এই দুর্গাপূজা কার্নিভালের যে মূল কনসেপ্ট, সেটাই আসানসোলে বার্নপুর থেকে তৈরি হয়েছিল। বার্নপুরে আজ 40 বছর আগে থেকে দুর্গাপূজা কার্নিভাল হয়ে আসছে, এবছর হচ্ছে। সেটা বেসরকারি উদ্যোগে হয়, সেটাকে সরকারি উদ্যোগে যখন করা হলো তখন এটাকে দুর্গাপুর নিয়ে চলে যাওয়া হলো। আসানসোলের সমস্ত টাকা চলে যাবে কলকাতায়। আসানসোলের যে বিভিন্নভাবে আসানসোলের মানুষকে যে আনন্দ দেওয়া যায়, সে যে মিন্সগুলো আছে সেগুলো সরকারি মিন্স চলে যাবে দুর্গাপুরে, আর আসানসোলের মানুষ শুধু ট্যাক্স দেবে। এটা আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি, এবং আমরা দাবি করছি যে সেম কার্নিভাল
যেহেতু আসানসোল সিটি টাউন, এই জেলার সিটি টাউন হলো আসানসোল, আসানসোলে সেম কার্নিভাল করা হোক, এখনো সময় আছে, করা হোক, 2 দিন 4 দিন 5 দিনের মধ্যে করা হোক। আর যদি না করা হয় আলটিমেটলি, তাহলে অন্তত এটা ঘোষণা করা হোক যে সামনের বছর থেকে এটা আসানসোলে হবে, এই দাবি আমরা রাখছি। এটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য। এবং শুধু এটা আমার দাবি না, আসানসোলের প্রচুর মানুষের এটা ইচ্ছা ছিল যে এটা আসানসোলে হওয়া উচিত, প্রচুর মানুষ এটাতে দুঃখ পেয়েছেন। এবং আসানসোলে যাদের এই দাবি তোলা উচিত ছিল, তারা দুর্গাপুরে গিয়ে হাততালি দিতে ব্যস্ত। দুর্গাপুরের মানুষকে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आसनसोल राइफल क्लब के द्वारा आसनसोल राइफल क्लब प्रांगण में 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक 31वां ऑल इंडिया जीबी मालवाकर शूटिंग चैंपियनशिप राइफल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी शनिवार को आसनसोल राइफल क्लब के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार दल्लल ने दे दी। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में कुल 1350 प्रतियोगी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों के प्रतियोगी शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता में वही प्रतियोगिता भाग लेंगे जो राष्ट्रीय राइफल चैंपियन मानक अंक क्वालिफाई कर चुके हैं। इस विषय पे उन्होंने और भी कई बातें कही। वहीं इस प्रतियोगिता के पुरस्कार की घोषणा 13 अक्टूबर को की जाएगी। জিবি মামলাঙ্কার যে অল ইন্ডিয়া শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপটা এখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাতে আমাদের গোটা ভারতবর্ষ থেকে প্রায় অ্যাবাউট 1300-1350 শুটার অলরেডি পার্টিসিপেট করছেন। এবং সেটা 9 তারিখ কাল থেকে আমাদের আরম্ভ হচ্ছে। কাল সকাল 11:30টায় আমাদের প্রাইজ ওপেনিং সেরিমনি এবং 2 দিন প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন আছে, 13 আর 15 তারিখ বিকেল 3:30 এই পর্যন্তই হচ্ছে। যাতে এটা সাকসেসফুলি আমরা কন্ডাক্ট করতে পারি, সবাই খুবই সচেষ্ট, আপনাদেরও কোঅপারেশন সবাই আশা করছি। जो बोलिएगा। आप सबको आसनसोल राइफल क्लब में स्वागत है। आप लोगों को सबको इस त्यौहार की शुभकामनाएं हमारे आसनसोल राइफल क्लब की तरफ से। आज ये जो हम लोग ने प्रेस मीट जो आयोजन किया है, उसका मेन उद्देश्य है कि हमारे यहाँ आगामी कल से यानी कि 9 तारीख से 31st ऑल इंडिया जीबी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप 2022 राइफल इवेंट्स में हो रहा है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये राइफल इवेंट्स क्यों? गत वर्ष तक मावलंकर हो या कोई भी शूटिंग प्रतियोगिता जो हमारी हो रही थी, हम लोग एक ही जगह कॉम्पोजिट कराते थे। राइफल पिस्टल जो दोनों का इवेंट्स एक ही जगह कराते थे, लेकिन हम लोग की संख्या शूटर की बढ़ती जा रही है और दिन बढ़ जाएंगे, इसलिए हम लोग ने अभी अलग अलग जगह पर व्यवस्था की है। जैसे ये हमारा 31वां ऑल इंडिया जीबी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप जो कि प्री नेशनल टूर्नामेंट है, जो स्टेट से मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर से क्वालिफाई करते हैं जो भी शूटर, वो लोग इसमें खाली भाग ले सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री इसमें किसी की नहीं है। जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर जो हम लोग का एक तो सेट किया हुआ है, उसको अचीव करते हैं स्टेट चैंपियनशिप में अपने अपने स्टेट में, उसके बाद ही यहाँ पर वो भाग ले सकते हैं। और इस बार जैसा कि आपको मैंने बताया कि शूटर्स की संख्या इतनी बढ़ गई है कि राइफल का जो कंपटीशन है वो आसनसोल में हो रहा है और पिस्टल का जो कंपटीशन है वो एकदम दक्षिण भारत केरला में तिरुवनंतपुरम में होगा। इसी तरह से हम लोग का जो आगामी आने वाले दिनों में नवंबर में जो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप भी हो रहा है, वो भी हम लोग 3 भाग में कर रहे हैं। जो शॉटगन है वो दिल्ली में होगा, राइफल जो है भोपाल में होगा और जो पिस्टल होगा वो त्रिवेंद्रम में तिरुवनंतपुरम में होगा, केरला में। हमारे यहाँ पर जो कल से प्रतियोगिता शुरू हो रही है, इसमें 2 इवेंट हैं। एक 50 मीटर्स की इवेंट है। 50 मीटर्स में एक प्रोन होता है, एक 3 पोजीशन होता है। प्रोन एंड 3 पोजीशन। 3 पोजीशन का मतलब हुआ नीलिंग, स्टैंडिंग एंड प्रोन, माने जो लेट करके करते हैं। और एक होता है खाली प्रोन। ये इवेंट्स है। इसमें हमारे करीब 400 शूटर प्रोन में 50 मीटर्स में हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं और कुछ लोग अभी भी जैसे 1-2 नंबरों से स्टेट में नहीं क्वालिफाई कर सके,
तो जिसको वाइल्ड कार्ड एंट्री बोलते हैं उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा है हमारे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एनआरआई को, तो उसमें वो लोग अगर एक्सेप्ट करेंगे तो वो लोग को भी भाग लेने दिया जाएगा। और प्राय 900 शूटर्स का ऑलरेडी एंट्री हो चुका है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। काजड़ा एरिया के मधुसूदनपुर कोलियारी दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से समाज सेवी टिंकू महातो के नेतृत्व में खिचड़ी भोग आयोजित की गई, जिसमें 2000 भक्तों ने खिचड़ी प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर टिंकू महातो ने कहा कि मधुसूदनपुर कोलियारी में करीबन 20 साल से खिचड़ी भोग आयोजित की जा रही है, जिसमें हजारों भक्तों खिचड़ी प्रसाद का आनंद उठाते हैं। वहीं इस खिचड़ी भोग कार्यक्रम में करीबन 2000 लोगों ने खिचड़ी प्रसाद भी ग्रहण किया। आज मधुसूदनपुर कोलियारी में जो खिचड़ी का प्रोग्राम रखा गया है, किस चीज को लेकर के रखा गया है? माँ दुर्गा का उपलक्ष्य में यहाँ हर एक साल महा खिचड़ी का आयोजन किया जाता है। लगभग ये प्रोग्राम कितने सालों से चल रही है? ये मोटामोटी 18 से 20 साल से। कितने भक्त लोग अभी खिचड़ी प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं? मोटामोटी 1900 से 2000। कितने भक्तजनों का टारगेट है खिलाने का? मोटामोटी 2500। आपका नाम? टिंकू महातो। और यह मधुसूदनपुर कोलियारी में जो आज महाभोग का आयोजन किया गया है, इसमें कितने भक्त अभी तक खा चुके हैं और कितने भक्त खाएंगे? आ चुके हैं मोटामोटी 2000 से ऊपर खा चुके हैं और टारगेट अभी है मोटामोटी 400 से 500 और आदमी खाएंगे। ये प्रोग्राम लगभग कितने सालों से चल रही है? ये प्रोग्राम तो आपको 20 साल 21 साल से चल रहा है, लेकिन पूजा हो रहा है 43 से। ये प्रोग्राम 43 साल था ये प्रोग्राम क्या कमेटी की तरफ से हो रही है? ये पूजा कमेटी की तरफ है। आपका नाम? हमारा नाम हिजरत अली गुप्ता, आप सेक्रेटरी है पूजा के? दुर्गा पूजा सेक्रेटरी हिजरत अली गुप्ता। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रविवार को कोजागुरी लक्ष्मी पूजा है और बंगाली समाज लक्ष्मी पूजा के आयोजन में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए पूजा से पहले लोग लक्ष्मी पूजा के लिए तरह तरह का सामान खरीदने में लगे हैं। इस पूजा को लेकर बाजार में फूल, आम के पत्ते, बेल पत्ते, दूब घास के साथ चावल के दाने, गन्ना, कमल के फूल बेचे जा रहे हैं। फूलों के दाम में काफ़ी तेज़ी दिख रही है। नारंगी गेंदा 30 रुपये, पीला गेंदा 30 से 40 रुपये, रजनीगंधा की चेन 10 रुपये प्रति पीस और टैगोर फूल की कलियों से बनी माला 10 रुपये में बेची जा रही है। वही धान 5 रुपये से शुरू होकर 50 रुपये तक बेचे जा रहे हैं। धान के बंडल के अलग अलग डिज़ाइन बनाकर बाजार में बेचा जा रहा है। कमल का फूल 10 से 15 रुपये प्रति बिक रहे हैं। गन्ना 10 रुपये प्रति पीस बिक रहे हैं। बंगाली समुदाय के लोग फूल बाजार में ऊंचे दामों पर धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए ऊंचे दामों में फूल खरीदते नजर आ रहे हैं। ফুল বেলপাতা নাকি কিরকম করে এই ধানের শীষগুলো কিরকম কি দিচ্ছ? 5 টাকা করে আঁটি। আর পদ্ম ফুল পিস। কোথা থেকে আসছো তুমি? বাঁকুড়া। বিক্রি হচ্ছে সব? প্রত্যেকদিন বিক্রি করো না আজকে স্পেশাল এনেছো? কি নাম তোমার? কি কি অসুবিধা রয়েছে? অসুবিধাটা আমি এখনো কিছু দেখিনি, কিন্তু অসুবিধা একজন বললো যে জঙ্গল ঘাসপালাগুলো কাটা অনেক বড় বড় হয়ে গেছে। তা আমি বললাম যে কী করবে, যেখানে কর্মী সেই এখন দেখছে না, তো আমরা কী বলবো। আর টাঙ্কিতে জল নেই। হ্যাঁ, টাঙ্কিতে জল নেই। আর ম্যানুয়ালগুলো এদিকে ওইগুলো সব ফুলো আছে। এবার আসে তো ওই পাম্পটা চালায়, পাম্প চালায় যতটা জলের দরকার ততটা জল ওরা ভরে, তারপর কাজ হয়ে যায় তো ওরা চলে যায়। সুইচ বোর্ডগুলো? সুইচ বোর্ডগুলো কিছু নেই, সুইচ বোর্ড কিছুই নেই। সুইচ বোর্ড যা ছিল সব খতম, খোলা আছে প্রত্যেকটাতেই? প্রত্যেকটাতে দেখুন না, দেখতে পাচ্ছেন সব তো খোলা আছে। তার সঙ্গে তার জয়েন করে দিয়েছি, সুইচ বোর্ড বলতে কিছু নেই। তো বিপদ হতে পারে মনে করেন বাচ্চারা যদি আসে? তো হবে না, বাচ্চারা তো দিনে তো লাইন জ্বলে না, সেটা রাত্রের দিকে জ্বলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাচ্চারা পার্কে আসে, বাচ্চারা খেলে গুলে। কি মনে হয় বিপদ হতে পারে? বিপদ তো হতেই পারে। বিপদে পৌরসভা যদি ঠিকমতো আইন কানুন করে তাহলে ঠিকই আছে, খুবই ভালো হবে। কি নাম আপনার? আমার নাম মিতেশ। मितेश बाध्यकर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।
आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत जामुड़िया थाना क्षेत्र के थाना मोड़ बस स्टैंड इलाके में शुक्रवार की संध्या प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई। खबर पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची, मगर पुलिस पर भी पथराव किया गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस ने 2 लोग उमेश नौनिया एवं मुकेश नौनिया को गिरफ्तार कर लिया। घटना को लेकर जामुड़िया बाजार में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस के उच्च अधिकारी ने कहा कि इस घटना को कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुए। सनद रहे कि 2 दिनों पहले ही जामुड़िया क्षेत्र की अधिकांश मूर्तियां विसर्जित कर दी गई थी, लेकिन बाजार के कुछ मूर्तियों को विसर्जन नहीं किया गया था। उन्हीं मूर्तियों को शुक्रवार की संध्या विसर्जन किया जा रहा था। पुलिस की देखरेख में विसर्जन के लिए गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा भी निकाली गई थी। इस दौरान निकाले गए अखाड़ा में लाठी के खेल खिलाड़ी प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन हठात जामुड़िया बाजार के बीच में ही किसी विषय को लेकर हुए वाद विवाद को लेकर तनाव होने लगा। थाना मोड़ बस स्टैंड के पास एक अवैध शराब दुकान तक पहुंचने के बाद हंगामा और भी बढ़ गया। देखा गया कि स्थानीय युवक राहुल वर्मा एवं उसके भाई अंकित वर्मा द्वारा अवैध रूप से शराब बेचे जाने को लेकर विरोध करने पर मुकेश एवं उमेश नौनिया लाठी लिए उनसे झगड़ा करने लगे एवं अंकित वर्मा के सर पर चोट लगी और इलाज के लिए उसे अखलपुर स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। बाराबनी थाने की पुलिस ने शनिवार को पानीफल पार्क के जलाशय से एक वृद्ध का अर्धनग्न शव बरामद किया। बाराबनी थाना अंतर्गत लालगंज दोबानी रोड स्थित पानीफल पार्क की पानी की टंकी से हेनापाड़ा गांव निवासी 55 वर्षीय नारायण कोड़ा का अर्धनग्न शव बरामद किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सुबह क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को पानी में तैरता एक व्यक्ति का अर्धनग्न शव मिला। सुबह क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को पानी में तैरता एक व्यक्ति का अर्धनग्न शव मिला, जिसे देखकर बाराबनी थाने को तुरंत सूचना दी गई।
खबर सुनते ही आसपास के गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई और बाराबनी थाने के पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद से शव को जलाशय से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। নারায়ণ কে আছে দেখো নারায়ণ কষ্ট করে পাকাচ্ছি নারায়ণ মারি টাড়ি দেখছো হ্যাঁ চোখে কম দেখছো হ্যাঁ চোখে কম দেখছো ওইটা বুঝে ওইটা পাঁচ ধোয়া মোচারা মোচারে সুন্দর কাম যা হই যাবে এই দিকে हो तो रे क्या हो क्या बोटा तो ये तो सारी लोग के लिए ये साइकिल का काल के दे। सहारनपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। पश्चिम बंगाल के मुख्य त्योहार में से एक नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा होने के बाद दुर्गा पूजा खत्म हुआ, जिसके बाद दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया। इस क्रम में सालडांगा दुर्गा मंदिर की प्रतिमा विसर्जित शुक्रवार की शाम को हुआ। विसर्जन में नाना प्रकार के झांकियां और करतब देखने को मिला। ये विसर्जन लोगों के मनमोहन के एक बहुत ही बेहतरीन कारण बना। दूसरी ओर काली तल्ला दुर्गा उत्सव पूजा कमेटी की दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन काफी हर्षोल्लास के साथ किया गया। साथ ही स्कूल पाड़ा दुर्गा पूजा का विसर्जन भी काफी भव्य रूप से हुआ।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज स्थित फल मंडी में लक्ष्मी पूजा के पहले फलों की कीमत में आग लग गई। ज्यादातर फल ऊंचे दामों पर बिकी जा रही है। लक्ष्मी देवी की कलश पर रखे जाने वाला सीस डाब 40 से 50 रुपए प्रति पीस बिक रहा है। इसी तरह केले 50 से 70 रुपए प्रति दर्जन, सेब 150 रुपए प्रति किलो, नाशपाती 120 रुपए, संतरा 120 रुपए, मौसम्बी 100 रुपए, अनार 250 रुपए, अमरूद 60 से 80 रुपए, नारियल एक पीस 50 से 60 रुपए के हिसाब से बेची जा रही है। वहीं इन फलों में दुकान पर अमावट, खजूर, चेरी फल भी अन्य दिनों के अपेक्षा में ऊंचे दाम पर बिक रही है। कुल मिलाकर फल बाजार में भव्य अन्य दिनों की तुलना में काफी अधिक देखी जा रही है। मिठाई की दुकान पर भी भारी भीड़ देखी जा रही है। मूड़ी मुड़की के साथ बंगाली परिवारों के सदस्य टाना नाड़ू, नारियल नाड़ू, बूंदिया नाड़ू, कदमा, बतासा, गुड़ पटली खरीदने के लिए दुकानों में उमड़ पड़ी है। হ্যাঁ মানে এটা কি কলা বলে এটাকে? পুজোর কলাই, চাপা কলা, চাপা কলা। আর আশিটা বাজে লক্ষ্মী বাজার লাগে। কত কত এটা? ওটা 50 টাকা, 40 টাকা, 40। হুম। হ্যাঁ 120, 100 টাকা কিলো পাবে। নারকেল লাগে 50 টাকা আছে, 40 টাকা আছে, 35 টাকা আছে, যেমন যেমন জিনিস কম দাম হবে। আপেল 100 টাকা কিলো পাবে। 10 টাকা 20 টাকা, আমার 10 টাকা। আর চেরি 10 টাকা করে। মানে সবই কি দাম আগে থেকে বেড়েছে না একটু একরকম আছে? হ্যাঁ পুজো আছে, দাম চাপা একটু বলে। কি নাম আপনার? पिंटू। दूसरी ओर मूर्ति का भी बिक्री और खरीद सामान्य रही। विक्रेताओं ने बताया कि दुर्गा पूजा के तुरंत बाद लक्ष्मी पूजा आ जाती है, इसी कारण उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा तो उनकी तैयारियां भी थोड़ी फीकी रह गई है। कुल मिलाकर बाजार सामान्य दिखा। खरीदते हुआ माल का दाम भी बढ़ गया है और बाज़ार का स्थिति थोड़ा नॉर्मल है। कितना पीस माल उठाए थे टोटल? 120 पीस। 120 पीस टोटल मिला के अभी तक बिक्री कैसा हुआ सेलिंग? अभी तक मोटा मोटी 70-80 का माल बचे हुए हैं। कस्टमर सुबह से आ रहे हैं? हाँ टुक टक प्रकार है। ये मूर्ति 400 का है और इसमें थोड़ा डार्क साज है, बोल के डार्क साज मट्टी कपड़ा में डार्क साज है। आपका नाम परिचय? हमारा नाम दिखती हुआ के कारण इस साल समय नहीं मिला। पूजा इतना नज़दीक आ गया है, मतलब हर पूजा सामना सामनी हो रहा है। इसी वजह से हम लोग मतलब बहुत जल्दी ही लेकर चले आए। दिन पहले ही लाए हैं, बारिश के डर से ये हम लोग ज़्यादा माल नहीं लाए। अच्छा, माल मिनिमम लाए हैं, ज़्यादा नहीं लाए? मतलब हल्का में ही माल लेकर आए। कितना पीस माल उठाते हैं सब मिला के, बड़ा छोटा? सब मिला के वही हमारे 1500 पीस, 1000, 1200, 1500 इतना ही रहता है। अभी तक सेलिंग कैसा है? अभी मोटा मोटी मीडियम सेलिंग है। सेलिंग मतलब धूप भी आज बहुत कड़ा है, अभी आदमी बहुत सारा निकला नहीं। मूर्ति का जैसे मूर्ति है यहाँ पे, छाछ का जो मूर्ति है, विशेष कुछ मतलब कारू मैंने विशेष कुछ मैंने लुक में वही मतलब फिनिशिंग दे दिया है थोड़ा इस तरह का मूर्ति, मतलब लुक में बढ़िया लुक में इस साल किया गया है। आदमी को ये सब ज़्यादा पसंद आ रहा है। क्या रेंज में है मूर्ति? ये सब 350, 400 जिस तरह का साइज। मिनिमम कितना? कम से कम 250 रुपया है फिनिशिंग। स्टार्टिंग जो एकदम 250 रुपया फिनिशिंग जिस तरह का। लास्ट तक कितना है? लास्ट 600 है, लास्ट 600, 550, 500। मतलब मीडियम बाजार है, ज़्यादा मीडियम बाजार है। मतलब रेट भी हिसाब से ही है, महंगाई के हिसाब से रेट हम लोग बहुत हिसाब से। तेल का भी दाम वहाँ जहाँ से माल खरीद रहे हैं वहाँ पर मतलब जोड़ के हर साल हम लोगों का 20, 30, 40 हर साल बढ़ता है। फिनिशिंग माल में हम लोगों को 70 रुपया बढ़ाया गया है। जो आपको दिखाया उस माल में 70 रुपया, उसका नॉर्मल है, उसका 70 रुपया कम। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा राव। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।